Yes, yes. Good morning, students. Today we'll continue our chapter number 8, that is economy and occupation. Please take out your textbook and see on the page number 52. Economy and occupation. Already you have introduced, means you have done the introduction by the previous teacher. Now I am continuing this. Already you have seen these activities, means productive activities, and you know now very well what are the productive activities and the meaning of economy. Again, a definition of economy. Even you know the types of occupations. Once again, I am introducing these. First is primary occupation, those which involve activities, those activities which are involved in the extracting raw food from nature. For example, fishing, food gathering, and agriculture. These activities are called primary occupations. Means these activities comes under the primary occupations. Now we'll see the secondary occupation in short. Those which involve processing or manufacturing of these raw food, for example, manufacturing of textiles. Means for example, जब भी शुगर केन से शुगर बनाई जाती है in the industries, this type of occupation is comes under the secondary occupation. Means industries comes under the secondary occupation. And the third one is, that is tertiary occupation. Those activities providing services to people. Example is given, the banking. Means there are many occupations which serve the people. For example, medical facilities, even doctor. We can take the example of doctor. They serve us. They treat or cure the patients. These activities to providing the services comes under the tertiary occupations. Already you have learned the important terms GNI, GDP, and per capita income. GNI means gross national income, GDP means gross domestic product, and per capita income means the per head income. This graph is also done. Okay. Today we'll see the economic activities in Brazil and India. First of all, see on your screen, and this pie chart is also given on the page number 53. Observe this. There are two pairs of pie chart is given. Means first is contribution of sectors in GDP year 2016. First two pie charts, one is from Brazil and one is from India. These first two pie charts are showing the contribution of sectors in GDP. Means हर एक सेक्टर का जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन दिया है वो यहाँ पर शो हो रहा है. एंड अगर हम सेकेंड वाला जो पेयर देख रहे हैं ब्राजील का एंड इंडिया का, लेफ्ट साइड में दिया है ब्राजील एंड राइट साइड में दिया है इंडिया, तो वहां पर उसके नीचे पाई चार्ट के ऊपर दिया है ऑलरेडी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एंगेज इन वेरियस सेक्टर्स ईयर 2016. जो सेकेंड वाले जो दो पाई चार्ट दिए हैं, एक ब्राजील का एंड एक इंडिया का, उसमें दिया है जितनी भी पॉपुलेशन अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग ऑक्यूपेशंस में एंगेज है उस कंट्री के अकॉर्डिंग दिया हुआ है. तो उसको ऑब्जर्व करते हैं और उसके बेसिस पे ही क्या किए हैं, यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज अ हायर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एंगेज इन प्राइमरी एक्टिविटीज. तो कौन सी कंट्रीज का हायर परसेंटेज पॉपुलेशन जो है वो प्राइमरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है. तो उसके लिए जो डाउन साइड का जो पाई चार्ट के जो पेयर्स दिए हैं
पॉपुलेशन एंगेज इन वेरियस सेक्टर्स, उसको ऑब्जर्व करना है। तो उसमें जो कलर्स दिए हैं, फर्स्ट ब्लू कलर दिया है वो प्राइमरी ऑक्यूपेशंस के लिए है, सेकेंड दिया है ऑरेंज कलर दैट इज फॉर सेकेंडरी ऑक्यूपेशंस एंड द ग्रे कलर इज फॉर टर्शियरी ऑक्यूपेशंस। और हमें यहाँ पर क्या बोला है कि यहाँ पर फाइंड आउट करना है, ऑब्जर्व करना है कि हायर परसेंटेज कौन सी कंट्री का प्राइमरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। तो उसका आंसर आता है इंडिया। क्यों? क्योंकि अगर हम प्राइमरी एक्टिविटीज देखते हैं मीन्स क्या, तो ब्लू कलर, तो हमें जो सेकेंड वाले पाई चार्ट में दिखता है पॉपुलेशन एंगेज इन वेरियस सेक्टर्स, उसमें हमें ब्लू कलर का हिस्सा जो है उसका जो पार्ट है दैट इज 48.8%। एंड अगर हम ब्राजील का देखते हैं तो 10% इतना ही है। तो प्राइमरी एक्टिविटीज अगर हम देखते हैं तो पीपल का एंगेजमेंट, इन्वॉल्वमेंट, तो हमें इंडिया का ही सबसे ज्यादा दिखता है। क्यों? क्योंकि it is a 48.8% and it is more as compared to the Brazil. The next is, in which country is the contribution of tertiary sector greater in GDP? तो टर्शरी सेक्टर का हमें यहाँ पर क्या करना है, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन मींस क्या, वी हैव टू ऑब्जर्व द फर्स्ट पाई चार्ट। तो वहां पर हमें फर्स्ट जो पाई चार्ट दिया है कंट्रीब्यूशन ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी, तो दोनों अगर हम ब्राजील का एंड इंडिया का देखते हैं तो टर्शरी सेक्टर का हमें क्या देखने को मिलता है, ब्राजील का जो टर्शरी सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन है 67%। टर्शरी के लिए ग्रे कलर यूज किया है। एंड इंडिया का हम देखते हैं टर्शरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी तो हमें 57 दिखता है। मींस इंडिया का लेस है एज कंपेयर टू द ब्राजील। ब्राजील का जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज 67%। 67% contribution in the GDP of tertiary sector. The next question, in which country is the share of secondary activities more in the GDP? तो कौन सी कंट्री का अगर हमें सेकेंडरी सेक्टर का जो सेकेंडरी एक्टिविटीज का अगर हमें जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देखना है तो हम देख सकते हैं यहाँ पर इट इज विजिबल। हमें इंडिया का दिखता है 26 एंड ब्राजील का दिखता है 27.5%। तो 27.5% secondary means it is more in Brazil. So our answer will be Brazil. But you have to write it in complete sentence. Don't write in one word. The next, can we say what Brazil is an agrarian economy like India? Can we say that Brazil is an agrarian economy like India? Give reasons. यहाँ पर एग्रेरियन इसका मतलब क्या है कि फार्मिंग करने वाला, खेती बाड़ी करने वाला ऐसा कंट्री है क्या ब्राजील? हम उसको ऑब्जर्व करके बता सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि जो भी एग्रेरियन एक्टिविटीज होती है या फिर फार्मिंग से रिलेटेड, खेती बाड़ी से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होती है वो क्या होते हैं, दैट कम्स अंडर द प्राइमरी सेक्टर। अगर ब्राजील का हम प्राइमरी सेक्टर को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें क्या है वहां पर देखने को नहीं मिलता है कि उसका शेयर ज्यादा, जीडीपी में भी नहीं दिखता। इवन परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एंगेज इन वेरियस सेक्टर्स में भी अगर देखते हैं तो हमें वहां पे प्राइमरी सेक्टर में एंगेजमेंट भी बहुत कम दिखती है, दैट इज ओनली 10%। एंड अगर हम जीडीपी में उसका प्राइमरी सेक्टर का शेयर की बात करते हैं तो हमें वो देखने को मिलता है कितना, ओनली 5.5%। तो इसलिए हम वहां पर क्या स्टेटमेंट करेंगे, नो, we can't say Brazil is an agrarian economy like India because India has a higher percentage of population engaged in primary sector. ऐसा क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि हमें it is visible India has higher percentage of population engaged in primary sectors. The involvement of people in primary sectors is also more in India as compared to the Brazil. और अगर हम खाली ब्राजील से कंपेयर नहीं भी करते हैं तो भी हमें पता चल रहा है कि इंडिया में प्राइमरी सेक्टर में पीपल का इन्वॉल्वमेंट भी ज्यादा है, अगेन जीडीपी में भी शेयर है। बट ब्राजील का हमें पीपल का इन्वॉल्वमेंट भी कम देखने को मिलता है, अगेन जीडीपी में शेयर भी उनका कम देखने को मिलता है। नाउ विल कम टू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। In figure 8.1,
we saw that India has a higher national income than Brazil. अभी just now we have seen that figure. उसमें हमें क्या देखने को मिला था? तो ब्राजील का जो India has a higher national income than Brazil. India का जो है figure 8.1 means see on the page number 52 पर जो ग्राफ दिया है उसके बारे में दिया है यहाँ पर. तो वहां पर हमें देखने को मिला था कि इंडिया का जो नेशनल इनकम है वो ब्राजील से एज कंपेरेटिवली ज्यादा है. बट क्या होता है कि इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा होने के कारण वो जब भी पीपल में डिवाइड हो जाता है, मींस इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल, देन पर कैपिटा इनकम बिकम्स लेस एज कंपेयर टू द ब्राजील. मींस नेशनल इनकम भले ही इंडिया का ज्यादा है एज कंपेयर टू द ब्राजील, but due to the overpopulation, per capita income is less in India. Now the second point, Brazil is one of the most giant of mining, agriculture and manufacturing, and it has a strong and rapidly growing service sector. भले ही ब्राजील क्या है, ये है मोस्ट जायंट कंट्री है, किसके बारे में, माइनिंग है, अगेन एग्रीकल्चर है, पर फिर भी वहां पर भले ही माइनिंग एग्रीकल्चर अच्छे से डेवलप हो चुका है, पर फिर भी उनका जो शेयर है मोस्ट ऑफ हमें क्या देखने को मिलता है, सेकेंडरी सेक्टर्स में, मीन्स क्या मैन्युफैक्चरिंग में, एंड टर्शियरी सेक्टर्स में, मीन्स क्या सर्विसेज सेक्टर्स, तो वो भी वहां पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग बने हैं. द थर्ड पॉइंट इज, ऑन द अदर हैंड इंडिया इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, दो सर्विस सेक्टर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग इन इंडिया. अभी हम देखते हैं इंडिया के बारे में बात करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, तो इंडिया अभी भी कैसे है, तो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है. भले ही इंडिया में सर्विस सेक्टर्स जो है वो भी अभी इंक्रीज हो रहा है. जस्ट नाउ वी हैव सीन 57% इज द शेयर इन जीडीपी ऑफ टर्शियरी सेक्टर इन इंडिया, बट स्टिल वी आर डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर ऑल्सो. नाउ द फोर्थ पॉइंट, like the Indian economy, the Brazilian economy is also a mixed economy. हमने पहले ही देखा है इन द चैप्टर नंबर 5th and 6th में, क्या था वो, तो इंडिया का जो इकोनॉमी है वो कैसा है, मिक्स टाइप का इकोनॉमी है. मिक्स टाइप इवन इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में भी देखा हुआ है. मिक्स टाइप का इकोनॉमी मींस क्या, कि जैसे कि तुम लोगों ने पहले देखा हुआ है इन द लास्ट ईयर आल्सो इन 9th स्टैंडर्ड देयर वाज वन चैप्टर ऑन द इकोनॉमी, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी. इन दैट यू हैव लर्न देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी. तो वो जो तुम लोगों ने 3 टाइप्स देखे हैं उसमें एक था तो मिक्स टाइप का इकोनॉमी. तो उस मिक्स टाइप का इकोनॉमी जो है वो इंडिया का है, मींस जहां पर भी हमें प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर देखने को मिलते हैं उसको बोलते हैं मिक्स टाइप ऑफ इकोनॉमी. जैसे कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, अगेन सेकेंड होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी, एंड थर्ड होती है मिक्स टाइप इकोनॉमी. तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, टोटली प्राइवेट सेक्टर होता है. वो किस लिए होता है, टू स्पीड अप देयर इकोनॉमी. और वो कैसे होती है, स्पीड अप कैसी होती है, तो जब भी ऑल सेक्टर्स प्राइवेट सेक्टर्स बना दिए जाते हैं तब क्या करते हैं, पीपल में कंपटीशन होता है एंड कंट्री बिकम डेवलप. तो ऐसी क्या होती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है. उसके लिए हमने एग्जांपल लास्ट ईयर भी देखा था, दैट वाज द यूएसए. कंट्री यूएसए कैसी है, कैपिटलिस्ट टाइप की इकोनॉमी है उनकी. अगेन सोशलिस्ट इकोनॉमी, चाइना इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर सोशलिस्ट इकोनॉमी. मींस मोस्टली जो राइट्स होते हैं पीपल के वो कहाँ पर होते हैं, तो उनके पब्लिक सेक्टर के राइट्स गवर्नमेंट के पास होते हैं, और वहां पर प्राइवेट सेक्टर हमें हार्डली नहीं के बराबर देखने को मिलता है. गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कि कौन से एक्टिविटीज को कैसे प्रमोट करना है और पीपल ने भी कैसे ऑक्यूपेशन करने हैं. तो ऐसा हमने सोशलिस्ट इकोनॉमी देखा था, और हमने एग्जाम्पल भी देखा था कि चाइना सोशलिस्ट टाइप का इकोनॉमी उनकी है. एंड द मिक्स्ड इकोनॉमी जैसे कि इंडिया की है, सेम वैसे ब्राजील की भी जो इकोनॉमी है दैट इज ऑल्सो अ मिक्स टाइप ऑफ इकोनॉमी. व्हाई इट इज कॉल्ड मिक्स इकोनॉमी, बिकॉज जैसे कि सोशलिस्ट इकोनॉमी का मोटो होता है कि सबके लिए इक्वालिटी लाना. मीन्स पीपल में क्या है,
अगर रिच एंड पुअरनेस जो है उसका जो गैप है उसको फिल करना, उसको कम करना। जैसे सोशलिस्ट का ये मोटो होता है वैसे ही सेम कैपिटलिस्ट का क्या होता है, अगेन डेवलपमेंट होता है। तो उन दोनों का बैलेंस करके ये मिक्स टाइप की इकोनॉमी बनती है। तो ऐसी ही बैलेंस वाली जो इकोनॉमी है वो इंडिया में भी है एंड ब्राजील में भी है। इसीलिए हमें क्या है, इंडिया में भी क्या देखने को मिलता है, तो दो सेक्टर्स देखने को मिलते हैं, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स देखने को मिलते हैं। ब्राजील में भी सेम हमें प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर देखने को मिल रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर कंप्लीटली पीपल उसको लुकआउट है उनका, एंड पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट उसको सब चलाती है। ऑल राइट्स आर रिजर्व्ड टू द गवर्नमेंट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, बोथ द इंडियन एंड ब्राजीलियन इकोनॉमीज आर डेवलपिंग इकोनॉमीज। दोनों भी हमें पता है कि ब्राजीलियन इकोनॉमी भी कैसी है, डेवलपिंग इकोनॉमी है। इट इज नॉट डेवलप्ड और नॉट अंडर डेवलप्ड, बोथ इकोनॉमीज आर डेवलपिंग। दोनों भी तरक्की कर रहे हैं, दोनों भी ग्रो कर रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, देयर पर कैपिटा इनकम्स आर वेरी लेस एज कंपेयर्ड टू द डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएसए। अगर हमने देखा था पहले ऑन पेज नंबर 52, हमने ग्राफ देखा था, पर कैपिटा इनकम देखा था हमने, तो उसमें क्या देखा था, तो उसमें जो यूएसए का अगर हम देखेंगे तो उनका और ब्राजील एंड इंडिया का अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमें सबसे ज्यादा हाई पर कैपिटा इनकम किसका देखने को मिलता है, तो यूएसए का। इवन पेज नंबर 53 पे एक टेबल दिया है, देखो, पर कैपिटा इनकम फ्रॉम 1960 टू 2016 एंड करेंसी इज गिवन इन द यूएस डॉलर। वहां पर भी हम कंपेयर कर सकते हैं ब्राजील एंड इंडिया एंड यूएसए, तीनों का भी क्या दिए है ईयर वाइज, वहां पर कैपिटा इनकम दिया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1960 में ब्राजील का पर कैपिटा इनकम था 240, इंडिया का 90 एंड यूएसए का 3250। और अगर हम 2016 में वो देखते हैं तो हमें वो उनमें ह्यूज डिफरेंस देखने को मिलता है। ब्राजील एंड इंडिया में जो ग्रोथ हुई है उससे कई गुना ज्यादा यूएसए में पर कैपिटा इनकम में ईयर 2016 में ग्रोथ हुई है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, it is interesting to note that though India has a higher national income as compared to Brazil, the per capita income of India is lower than Brazil. वही जो मैंने आपको पहले डिस्कस किया था, what is the उसके पीछे का क्या है रीजन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, कि पॉपुलेशन जो है वो इंडिया में वो बहुत ज्यादा है, दैट इज इन वेरी लार्ज अमाउंट, दैट्स व्हाई per capita income is very less in India as compared to the Brazil, though it has a higher national income. Now the next, can you think of the reason why? The answer is given, per capita income of India is lower than Brazil because India's population is more than Brazil and going on rapidly increasing. तो अभी भी वो increase हो रही है। Now I was talking about this table, per capita income from 1960 to 2016 in US dollar. The points are given. The United States is developed country. तो हम इसको उस टेबल को ऑब्जर्व करके क्या कर सकते हैं, तो उसमें हम ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट जो है वो कैसा है, डेवलप्ड कंट्री है। कैसे, क्योंकि उनका पर कैपिटा इनकम जो है वो बहुत ज्यादा हाई है एज कंपेयर टू द ब्राजील एंड इंडिया। अगेन नेक्स्ट, द पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री इज वेल एजुकेटेड। अगर हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो वो कैसी है, वेल एजुकेटेड है। कहाँ पर, यूएसए में। अगेन थर्ड, दिस कंट्री हैज अ स्ट्रेंथ ऑफ many patents, modern technology and mechanical strength. अगर हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि क्या है, वहां पर उनकी जो स्ट्रेंथ है वो किस वजह से बनी हुई है, तो उनके पास बहुत सारे पेटेंट्स है। पेटेंट्स मतलब क्या, तो कोई चीज बनाने के लिए जो राइट्स होते हैं, दैट इज, तो ऐसे पेटेंट्स उनके पास बहुत सारे हैं। अगेन है मॉडर्न टेक्नोलॉजी,
एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, तो उनके पास जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो भी बहुत अच्छी है। अगेन द फोर्थ, this country is far ahead of Brazil and India in terms of national per capita income. Just now we have observed, क्या तो ब्राजील एंड इंडिया से अगर हम पर कैपिटा इनकम के बारे में कंपेयर करते हैं तो हमें क्या पता चलता है, तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है उनका जो पर कैपिटा इनकम है इट इज टू मच हाई as compared to the Brazil and India. The next point is India and Brazil are developing countries. As we know, India is developing country and Brazil is also a developing country. Now the next, these countries are developing in the field of technological advancement, education and industries. जैसे कि हमें पता है कि जब भी हमारा कंट्री मीन्स इंडिया एंड ब्राजील, ये दोनों भी कंट्रीज जब भी क्या हो जाएंगे, 100% एजुकेटेड हो जाएंगे, देन वी कैन कॉल इट एज अ डेवलप्ड कंट्री। तो ऐसा क्यों? क्योंकि वही रिप्रेजेंट करता है दिस कैरेक्टरिस्टिक्स, द लिटरेसी। अगेन उसके साथ साथ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, तो जब भी अपने यहाँ पर भी पूरा मॉडर्नाइजेशन हो जाएगा, इवन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो जाएगी, देन we can call it as a developed country. Again, education, we know 100% literacy when we'll achieve, then India will be developed country. And in industries, many industries are using old technologies in India and that should be upgraded. The next point is the national per capita income of the countries is low. अगर हम इसी टेबल को कंपेयर करते हैं तभी हमें पता चलता है ना कि इंडिया का भी एंड ब्राजील का भी, ये दोनों भी कंट्रीज का जो पर कैपिटा इनकम है एज कंपेयर टू द यूएसए वो बहुत ही ज्यादा कम है। कहाँ, कब से लेके 1960 से लेके 2016 तक के, और हम ब्राजील से भी कंपेयर करते तो इंडिया का बहुत ही ज्यादा कम है। इन 2016 ब्राजील का पर कैपिटा इनकम कितना दिखता है, $8,840, बट इन इंडिया $1,680, बस इतना ही पर कैपिटा इनकम देखने को मिलता है। मीन्स क्या, हम उनसे अभी भी देखेंगे तो 8 गुना पीछे हैं ब्राजील से, एंड यूएसए से तो कोई कंपेयर ही नहीं है इंडिया की। तो जब भी पर कैपिटा इनकम जब इक्वल हो जाएगा ब्राजील में, इंडिया में एंड यूएसए में, तब हम बोल सकते हैं कि नाउ इंडिया एंड ब्राजील बोथ कंट्रीज आर डेवलप्ड। नाउ विल मूव द नेक्स्ट पॉइंट। India's per capita income seems to be even lower as India's size is very large. हाँ, ये किस वजह से हमें देखने को मिलता है कि इंडिया की जो साइज है, मीन्स नॉट अकॉर्डिंग टू द एरिया, इट इज रिलेटेड टू द पॉपुलेशन साइज। तो इंडिया का जो पॉपुलेशन साइज है उसकी वजह से ही क्या हो रहा है, पर कैपिटा इनकम जो है वो हमें और कम देखने को मिलता है। जैसे कि हमें पता है पर कैपिटा इनकम मीन्स क्या, तो जो टोटल इनकम होता है वो दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल, एंड जब भी वो एक चीज से कितना आता है इनकम, दैट इज कॉल्ड एज अ पर कैपिटा इनकम। नाउ we'll see the primary occupations in Brazil and India. Primary occupation, those which involve activities extracting raw food from nature, means ऐसे activities which are involved in the extracting raw foods from the nature, that is called as a primary occupation. These are the 4 activities: agriculture, mining, fishing, animal husbandry. There are 4 activities: agriculture, mining, fishing, animal husbandry. Agriculture means खेती बाड़ी, mining means extracting iron ore or other minerals, and again fishing can be in the river or in the ocean or near to the coast. And the 4th is animal husbandry, means all the occupations related to the animals, just like animal rearing, again milk collecting and all. So these type of activities comes in the animal husbandry. तो जैसे कि ये agriculture, mining, fishing, animal husbandry, these activities comes under the primary occupations.
इनको हम प्राइमरी ऑक्यूपेशन बोलते हैं। और एंड इट इज डिपेंड ऑन द नेचर। जैसे कि हमें पता है एग्रीकल्चर में भी क्या होता है, किसी साल बाढ़ आती है, क्या होता है तो सूखा होता है, अकाल होता है, तो फेमाइन कंडीशन होती है। तो ऐसे ऐसे नेचर की वजह से, नेचर के ऊपर एग्रीकल्चर डिपेंड होने के कारण क्या होता है, तो ये जो प्राइमरी ऑक्यूपेशंस होते हैं इनमें हमें क्या है, प्रोडक्शन समटाइम्स लेस और मोर ऐसे देखने को मिलते हैं। समटाइम्स फेवरेबल कंडीशन होती है एनवायरनमेंट की, समटाइम्स अनफेवरेबल होती है। तो सेम वे से क्या है, इन एक्टिविटीज के ऊपर क्या होता है, नेचर का कंट्रोल होता है। तो इसीलिए ये जो भी प्राइमरी ऑक्यूपेशंस होते हैं इनमें इनकम जो होता है वो लेस इन अमाउंट देखने को मिलते हैं। दिस इज द मैप विच इज गिवन ऑन द पेज नंबर 54। और इस मैप में अगर हम इंडेक्स में देखते हैं तो वहां पर क्या दिया है, एग्रीकल्चर, माइनिंग, एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशिंग, फिशरीज दिया हुआ है। तो ऐसे पूरे प्राइमरी एक्टिविटीज के ऊपर ये दिया हुआ है। टाइटल देखो, ब्राजील मेजर प्राइमरी एक्टिविटीज। ब्राजील में जितने भी मेजर प्राइमरी एक्टिविटीज हैं वो यहाँ पर इस मैप के अंदर शो किए हुए हैं। तो इसको हम ऑब्जर्व करके भी पता कर सकते हैं कि कहाँ पर एग्रीकल्चर हमें ज्यादा देखने को मिलती है। जैसे कि हम अगर कोस्टल एरियाज में देखते हैं, अगेन साउदर्न पार्ट में देखते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, फर्स्ट कॉफी। कॉफी तो हमें कहाँ पर देखने को मिलती है, तो पराना रिवर के नजदीक वाला एरिया, साउदर्न साइड वाला जो एरिया है, साओ पाउलो स्टेट के नजदीक वाला, तो वहां पर हमें कॉफी जो है, कॉफी प्लांटेशन वगैरह वो वहां पर हमें एग्रीकल्चर में देखने को मिलती है। अगेन राइस, राइस इज नियर टू द कोस्ट, वी कैन फाउंड दैट। तो हमें राइस प्रोडक्शन भी कहाँ देखने को मिलता है, कोस्टल एरियाज में। साउथ अटलांटिक ओशियन की कोस्ट में भी देखने को मिलता है एंड नॉर्थ अटलांटिक ओशियन की कोस्ट में भी, कोस्ट लाइन पे भी हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज कॉर्न। कॉर्न हमें जो है, जो ग्रासलैंड देखने को मिलता है ना एरिया, सैवाना वाला, वहां पर थोड़ा बहुत मेज की, कॉर्न की एग्रीकल्चर वहां पर की जाती है। मीन्स क्या, मिडल पार्ट, ब्राजील का जो मिडल पार्ट है वो क्या है, वो प्रोड्यूसिंग एरिया है कॉर्न का। अगेन है शुगर केन। शुगर केन हमें जो ईस्टर्न कॉर्नर है वहां पर हमें शुगर केन देखने को मिलता है। अगेन काकोआ, रबर। रबर हमें मोस्टली अमेज़न का जो फॉरेस्टेड एरिया है, एवरग्रीन फॉरेस्ट, वहां पर हमें क्या देखने को मिलते हैं, तो रबर के प्लांट्स देखने को मिलते हैं। रबर के जो ट्रीज होते हैं उसमें से जो सैप आता है और फिर उसको प्रोसेस करके देन रबर को फॉर्म किया जाता है, प्रोडक्शन होता है। तो ऐसे हमें क्या है, रबर ट्रीज भी कहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो जो एवरग्रीन फॉरेस्टेड एरिया है अमेज़न रिवर बेसिन का, वहां पर हमें रबर ट्रीज देखने को मिलते हैं। अगेन है बनाना, कोस्टल एरियाज में है। अगेन ऑरेंजेस नियर टू द coastline, means parallel to the coast. Again soybean is all over spread. Then mining में हमें क्या क्या देखने को मिलते हैं, वहां पर मैंगनीज है, बॉक्साइट है, आयरन ओर है एंड कोल। These type of minerals found in the Brazil. Again एनिमल हस्बेंड्री। अभी जो एनिमल को रेयर करने का काम है मोस्टली हमें ग्रासलैंड एरियाज में देखने को मिलता है। सवाना, अगेन पंपास, वहां पर भी हमें देखने को मिलता है। मीन साउदर्न पार्ट है, अगेन पेरुवे पराना रिवर के नजदीक वाला जो पार्ट है, दैट इज। तो एनिमल हस्बेंड्री वहां पर चलती है क्योंकि वहां पर क्या है, ग्रासलैंड है। तो ग्रासलैंड एनिमल्स के लिए फेवरेबल क्लाइमेट होता है, क्लाइमेटिकली भी एंड अगेन उनको फीडिंग के लिए भी वो अच्छा होता है। देन द फिशरीज। फिशरीज जो है वो हमें कोस्टल एरियाज में देखने को मिलता है। मीन्स क्या, कि जहाँ पर क्या होता है, फिशिंग का ऑक्यूपेशन किया जाता है। अगर यहाँ पर हम देखेंगे ना, आपके स्क्रीन पे भी देखो, जो साउथ अटलांटिक ओशियन है
वहां पर कोल्ड वेव्स, कोल्ड करंट एंड वार्म करंट, ये दोनों करंट जहां पर कंबाइन हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं, वहां पर जो है अलग टाइप का जो है ना प्लैंक्टन आते हैं। वो क्या है, समंदर में पाई जाने वाली वनस्पति होती है और उसके ऊपर फीड करने वाले बहुत सारे फिश होते हैं। तो इसलिए हमें ये जो एरिया है वो फिश के लिए क्या होता है, फेवरेबल होता है। और ऐसे ही एरिया में क्या है, फिशिंग अच्छे से डेवलप हो पाती है, क्योंकि जहां पर फिश ज्यादा नजर आएंगे उस एरिया में क्या है, फिशिंग डेवलप होती है। तो हमें साउथ अटलांटिक ओशियन में ये जो है ना फिशरीज, ये ऑक्यूपेशन अच्छे से चलता है। अगेन जो महाराजो आइलैंड है उसके बाजू में, मीन्स नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के किनारे पे, कोस्ट पे हमें फिशिंग देखने को मिलती है। ये तो हमने ऑब्जर्व कर लिया अभी इस मैप को। These are the major crops grown in Brazil. Just now we have seen coffee, rice, corn, sugarcane, cocoa, rubber, cacao, cocoa, both are similar. Again, rubber, banana, orange, and soya. Now we'll see the agriculture in Brazil. In Brazil, agriculture is the main occupation of the people living in the highlands and coastal areas. Brazil में agriculture main occupation है कोई कोई people का, but कहाँ पर रहने वाले वो? That is, those people are living in the highland and coastal areas. Now the second, favorable climate and topography makes it possible for growing a variety of crops. उनके पास हमें फेवरेबल क्लाइमेट एंड टोपोग्राफी, ये जो दो फीचर्स है वो देखने को हमें, जहां पर भी फेवरेबल देखने को मिलते हैं क्लाइमेट एंड टोपोग्राफी, वहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा, तो वहां पर हमें वैरायटी ऑफ क्रॉप्स देखने को मिलती है, बिकॉज इट इज फेवरेबल फॉर क्रॉप्स. The third point is rice and maize are the main cereal crops. तो जो भी राइस है एंड अगेन मेज है, ये यहाँ के क्या है, मेन सीरियल क्रॉप्स है. Then the fourth, production of maize is largely concentrated in the central part. Just now we have observed that the yellow color symbol is given for the corn and these are the concentrated in the central part. Now the fifth point, commercial crops like coffee, cocoa, rubber, soybean and sugarcane are cultivated on an large scale. तो कमर्शियल क्रॉप्स भी वहां पर होते हैं, जैसे कि हमें पता है ब्राजील इज कॉल्ड एज अ कॉफी पॉट ऑफ द वर्ल्ड. मीन्स क्या कि क्यों, व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ कॉफी पॉट ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज they are producing the coffee in large amount as compared to the other countries in the world. तो इसकी वजह से क्या है, ये जो कमर्शियल क्रॉप्स है जैसे कि कॉफी है एंड कोकोआ, रबर, सोयाबीन एंड शुगर केन, ये भी यहाँ पर हमें लार्ज स्केल में देखने को मिलते हैं. रबर के लिए तो ज्यादा कुछ एफर्ट्स भी लेने की जरूरत नहीं उन लोगों को, क्यों, क्योंकि वहां पर एवरग्रीन फॉरेस्ट में बाय नेचर हमें रबर के जो ट्रीज है ये देखने को मिलते हैं, तो इसलिए वहां पर क्या है, रबर प्रोडक्शन भी ज्यादा है. अगेन द नेक्स्ट पॉइंट, that is the sixth, Brazil is largely exporter of coffee and soybean in the world. ब्राजील कंट्री क्या है, ये लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है किसका, कॉफी एंड सोयाबीन का, वर्ल्ड में नंबर 1. And the next point is the major states growing coffee are Minas Gerais and Sao Paulo. तो कॉफी मोस्टली हमें क्या, साओ पाउलो स्टेट में एंड मिनास जेरेस, ये दोनों स्टेट्स में हमें ज्यादा देखने को मिलती है. Then besides this crop, production of fruits like banana, pineapple, oranges and other citrus fruits is also done. तो यहाँ पर हमें अलग अलग जो सिट्रस फ्रूट्स है जैसे कि ऑरेंजेस एंड लाइम वगैरह, तो ये ऐसे सिट्रस फ्रूट्स भी हमें वहां पर ज्यादा देखने को मिलते हैं. अगेन उसके साथ साथ बनाना एंड पाइनएप्पल भी है. द नेक्स्ट इज कैटल, शीप and goats are also reared in the savanna grassland in the south. तो जो भी पंपास वाला एरिया है, मीन साउदर्न पार्ट ऑफ ब्राजील, उस पंपास एरिया में हमें क्या देखने को मिल, पंपास क्या है, दैट इज द ग्रासलैंड. तो ये इस ग्रासलैंड में हमें क्या देखने को मिलते हैं, तो जो कैटल एंड शिप्स एंड गोट्स हैं इनको रेयर करते हुए नजर आते हैं लोग.
कहाँ पर? तो पंपास के एरिया में भी अगेन जो मिडल पार्ट है दैट इज सावाना ग्रासलैंड, तो वहां पर भी हमें क्या देखने को मिलते हैं? तो ऐसे एनिमल्स को रेयर करते हुए नजर आते हैं लोग, तो उनका वहां पर ऑक्यूपेशन क्या हो गया है? तो एनिमल रेयरिंग हो गया है। Again, next is consequently meat and dairy products are produced on a large scale. तो वहां पर हमें जो डेयरी प्रोडक्ट्स है मीन्स क्या, मिल्क के ऊपर डिपेंड अदर डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, मीन्स क्या, जैसे कि पनीर बनाना, अगेन कॉटेज चीज, अगेन घी वगैरह, ऐसे जो मिल्क के ऊपर डिपेंड होते हैं ना, ऐसे प्रोडक्ट्स भी बनाने वाले जो छोटे छोटे से प्लांट्स है वो भी हमें वहां पर नजर आते हैं। अगेन उसके साथ साथ मीट, ये जो एनिमल्स हैं, हर एनिमल को वो मिल्क के लिए नहीं यूज करते हैं, या फिर उसका यूज मीट के लिए भी होता है, तो ऐसा लार्ज अमाउंट में भी उसका वो लोग प्रोडक्शन करते हैं इन द ब्राजील। नाउ सी द रबर। Interior part of Amazon basin grow major crop rubber. It is a planted crop due to their favorable climate in Brazil Amazon basin. It is difficult क्रॉप टू ग्रो इन डेंस फॉरेस्ट। तो देखो ये जो रबर है इसको क्या है, डेंस फॉरेस्ट में ग्रो करना क्या होता है, एक डिफिकल्ट टास्क होता है। सो रबर प्लांटेशन इज इन इंटीरियर पार्ट ऑफ ब्राजील। तो इसके वजह से क्या हो रहा है कि अमेजोन का जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, मीन्स एकदम से नॉर्थ साइड और नॉर्थ वेस्टर्न साइड में उसको ग्रो करना थोड़ा डिफिकल्ट है। क्यों क्यों? क्योंकि वहां पर क्या है, डेंस फॉरेस्ट नजर आता है। बट इंटीरियर पार्ट में अगर हम देखते हैं तो वहां पर ग्रासलैंड है, मोस्टली सवाना वाला, वहां पर ये जो रबर प्लांटेशन है इसको अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर क्या है, तो सवाना ग्रासलैंड होने की वजह से वहां पर हमें क्या है, ये जो डिफिकल्टी है टू ग्रो इन द डेंस फॉरेस्ट दैट रबर ट्री, ये वहां पर उन लोगों को फेस नहीं करनी पड़ती है। तो इसकी वजह से हमें मिडल पार्ट जो है ब्राजील का, वहां पर इसका रबर का प्लांटेशन देखने को मिलता है। रबर इज एन इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। रबर क्या है? इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है। कैसे? इस रबर की वजह से ही बाकी के जो रबर वाले जो इक्विपमेंट्स है वो बनाए जाते हैं। द नेक्स्ट इज सोयाबीन। एज वी हैव seen, the coffee and soybean is the main crop of Brazil. तो उसमें सोयाबीन देखो, सोयाबीन इज द इम्पोर्टेंट प्रोटीन सोर्स ऑफ ब्राजील। सोयाबीन इज ग्रोन इन लार्ज प्रोडक्शन इन ब्राजील। तो इसको बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस किया जाता है। इफ वी सी इन मैप द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस क्रॉप, वी विल find mostly grown in southern province and interior as well as coastal banks. तो हमें इंटीरियर पार्ट में भी सोयाबीन देखने को मिलता है, अगेन साउदर्न पार्ट में भी देखने को मिलता है। नाउ sugarcane. Sugarcane is grown just inside the coastal mountain in the highland region. At the coastal areas on the map, we can see more sugarcane grown in Brazil. तो कोस्टल एरिया में जैसे ही हम लोगों ने देखा है कि वो हमें शुगर केन के क्रॉप ग्रोन किए हुए नजर आते हैं। देन नेक्स्ट इज कॉफी। Brazil is mostly famous for coffee. Brazil is called as a coffee pot. Coffee is grown mainly in coastal areas and in hilly regions. तो जैसे कि साओ पाउलो वगैरह, वहां पर क्या है, कॉफी को मोस्टली प्रोड्यूस किया जाता है उन स्टेट्स में। नाउ कोकोआ, काको, बनाना, ऑरेंजेस। कोकोआ, काको, banana, oranges, all these crops grow more in coastal and adjoining hilly regions. Coastal areas में and जो hilly areas है वहां पर हमें ये वाले crops देखने को मिलते हैं। So Brazil has got kind of varieties of crops grown. तो हमें ब्राजील में बहुत सारे varieties के जो fruits वगैरह है वो देखने को मिलते हैं। Now mining in Brazil. Observe the figure 8.3 and answer the following questions. 8.3 जो है उसको ऑब्जर्व करके जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके आंसर्स देने हैं। पहले तो देखो, प्रिपेयर अ टेबल ऑफ माइनिंग प्रोडक्ट्स एंड रीजंस ऑफ
प्रोडक्शन इन ब्राजील, तो वहां पर जो भी माइनिंग प्रोडक्ट्स है एंड उसके जो रीजन्स है उसको हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंगनीज, मैंगनीज हमें कौन से रीजन में देखने को मिलते हैं, तो इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द हाईलैंड एरियाज। मैंगनीज हमें हाईलैंड एरियाज में ज्यादा देखने को मिलता है ये वाला मिनरल। अगेन बॉक्साइट नियर अमेजोन माउथ एंड कोस्टल एरियाज, बॉक्साइट, बॉक्साइट कहाँ पर देखने को मिलता है, तो अमेजोन का जो माउथ है मीन्स नियर टू द माराजो आइलैंड, वहां पर हमें क्या देखने को मिलता है, तो बॉक्साइट। अगेन आयरन ओर है, वो कहाँ पर है, हाईलैंड एरियाज में। एंड कोल, कोल कहाँ पर है, साउदर्न रीजन नियर टू अटलांटिक ओशियन, वहां पर हमें क्या देखने को मिलता है, कोल देखने को मिलता है। नाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन। द फर्स्ट इज इन विच पार्ट ऑफ ब्राजील हैज माइनिंग एक्टिविटी नॉट डेवलप्ड, व्हाट कुड बी द रीजंस। कौन से एरियाज है कि वहां पर माइनिंग एक्टिविटीज डेवलप नहीं हुई हैं और उसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है। सिंपल है, इंटीरियर पार्ट ऑफ ब्राजील बिकॉज इनएक्सेसिबिलिटी, लैक ऑफ नॉलेज, डेंस फॉरेस्ट, तो इसकी वजह से क्या है, हम यहाँ पर हमें माइनिंग एक्टिविटीज डेवलप नहीं हुई है ये देखने को मिलता है। क्यों, उसके पीछे के रीजंस क्या है, तो लैक ऑफ नॉलेज, इनएक्सेसिबिलिटी एंड डेंस फॉरेस्ट। अमेजोन का जो फॉरेस्टेड एरिया है उसकी वजह से भी वहां पर मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना डिफिकल्ट जाता है। द नेक्स्ट इज कंसिडरिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, where has the development of industries occurred। अगर हम अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज देखते हैं और कहाँ पर हमें इंडस्ट्रीज जो है वो डेवलप हो चुकी नजर आती है। हाई लैंड रीजन्स ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड इन कंट्री, तो हमें मोस्टली कहाँ पर देखने को मिलते हैं, हाईलैंड रीजन। हाईलैंड रीजन कौन से हैं, तो ब्राजीलियन हाईलैंड वगैरह। क्यों, क्योंकि वहां पर हमें सेटलमेंट देखने को मिलते हैं। अगेन उसके साथ साथ वहां पर क्या है, हमें तो पॉपुलेशन भी देखने को मिलती है। पॉपुलेशन डेंसिटी इज मॉडरेट और मॉडरेट टू हाई इन द हाईलैंड एरिया, क्योंकि जो क्लाइमेट है वो भी कैसा है वहां पर, फेवरेबल है। बट अगर हम नॉर्थ वेस्टर्न साइड में देखें तो वो क्या है वहां पर, तो अमेजोन रिवर बेसिन है, मीन्स अमेजोन रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज आर देयर, और उसकी वजह से क्या है, तो वहां पर इवन डेंस फॉरेस्टेड एरिया भी है और इसकी वजह से वहां पर क्या है, इंडस्ट्रीज भी नहीं है। बट हाईलैंड एरियाज में देखते हैं तो वहां पर पॉपुलेशन भी देखने को मिलती है, सेटलमेंट्स भी है एंड वहां पर हमें इंडस्ट्रीज भी देखने को मिलते हैं। Now, the eastern part of Brazil is rich in various types of minerals like iron ore, manganese, निकेल, कॉपर, बॉक्साइट, टंगस्टन, डायमंड एक्सेट्रा। तो हमें ईस्टर्न पार्ट में ब्राजील में क्या देखने को मिलते हैं, बहुत सारे टाइप्स के मिनरल्स देखने को मिलते हैं। उसमें है आयरन और अगेन मैंगनीज, निकेल, कॉपर, बॉक्साइट, टंगस्टन एंड डायमंड। द सेकेंड इज इनएक्सेसिबिलिटी, लैक ऑफ नॉलेज ऑफ पोटेंशियल रिजर्व of resources, dense forests, etc. are factors which have led to limitations in mining in the interior parts of the country। तो वहां पर हमें क्या है, बहुत सारे पोटेंशियल रिजर्वेयर के रिसोर्सेज भी हैं, मीन्स रिसोर्सेज के बहुत सारे रिजर्वेयर देखने को मिलते हैं। पर फिर भी वहां पर क्या है, इनएक्सेसिबिलिटी होने के कारण, अगेन नॉलेज कम होने के कारण ये जो वहां पर रिजर्वेयर्स है रिसोर्सेज के, उस तक वो लोग पहुंच ही नहीं पाते हैं। अगेन डेंस फॉरेस्ट होने के कारण भी वहां पर फिर क्या है, ये जो माइनिंग है इसको डेवलपमेंट उसकी नहीं हुई है और लिमिटेशन आ जाते हैं। देन द थर्ड, नेवरथलेस बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग डिमांड इन द कंट्री, माइनिंग वर्क हैज डेवलप्ड वेल इन द हाईलैंड रीजन्स। तो हमें जो भी इंक्रीजिंग डिमांड है, मीन्स क्या पॉपुलेशन हमने देखी है कि मोस्टली कहाँ पर, कोस्टल एरियाज में एंड हाईलैंड एरियाज में कॉन्सेंट्रेट हुई है। तो जहां पर पॉपुलेशन डेंस है वहीं पे क्या होता है, तो डिमांड होती है किसकी, तो इन मिनरल्स की, और इसकी वजह से क्या है, माइनिंग भी वहीं पे हमें डेवलप होते हुए नजर आता है। We'll see the animal husbandry in the next
period? Just a minute, let me check. Okay. We'll see the animal husbandry in the next period. Till then, bye students. Hello, sir. Shall I stop here? Yes, ma'am. Can wind up the lecture? Okay.